خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 33واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ یرمیہ 33واں باب پہلی آیت میں یوں لکھا ہے: ہنوز یرمیہ قید خانہ کے صحن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا کہ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس شہر کے گھروں کی بابت اور شاہان یہودا کے گھروں کی بابت جو دمدموں اور تلوار کے باعث گرا دیے گئے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ وہ کشتیوں سے لڑنے آئے ہیں اور ان کو آدمی کی لاشوں سے بھریں گے، جن کو میں نے اپنی کیر و غصب سے قتل کیا ہے، اور جن کی تمام شرارت کے سبب سے میں نے اس شہر سے اپنا منہ چھپایا ہے۔ دیکھ، میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، اور میں یہودا اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا، اور میں ان کو ان کی ساری بدکرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا، اور میں ان کی ساری بدکرداری جس سے وہ میرے گناہگار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا، اور یہ میرے لیے روئے زمین کی سب قوموں کے سامنے مسرت بخش نام اور ستائش و جلال کا باعث ہوگا۔ وہ سب بلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنیں گی، اور اس بلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لیے مہیا کرتا ہوں ڈریں گی اور کانپیں گی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے، اور جب وہ ہمارے درمیان ہے تو ہم سے کلام کرتا ہے، اور اس کے کلام کی قدرت سے عجائب ظہور میں آتے ہیں، اور اس کے کلام کی قدرت سے لوگ بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ تو رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ تو اپنے لوگوں کی بدکرداری، ان کے گناہ، ان کی بد اعمالیوں کو معاف کر کے انہیں صحت، تندرستی اور برکت بخشتا ہے۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنی تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور تیری عمیق باتوں کو بیان کروں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، میں چھپوں تو نظر آئے، اور آج ہر ایک جو تیرے حضور امید اور ایمان کے ساتھ آیا ہے، ہر ایک کے آئی خداوند ایمان کے عین مطابق ان کی زندگیوں میں کام کر، اور جو ایمان نہیں رکھتے لیکن آئے ہیں، آج اپنے کلام سے ان کے ایمان کو بڑھا تاکہ
वो भी तुझसे शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती पाए। ऐ खुदा, मेरा ईमान है आज इन सब के बंधन टूट जाएंगे और तेरी कुदरत से अजायब ज़हूर में आएंगे। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, देख मैं उसे सेहत व तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा और अमन सलामती की कसरत उन पर ज़ाहिर करूंगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि गुनाह के सबब से, नाराज़गी के सबब से, सरकशी और खुदा से बगावत के सबब से बीमारियों में, मुसीबतों में, परेशानियों में और बदहाली का शिकार हो गए। लेकिन खुदा मेहरबान है और वो रहम करता है और वो अपने फजल से उन लोगों को जो बीमारियों में मुब्तला हैं अपने गुनाह के सबब से और जिनका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी हकीम के पास नहीं और किसी तबीब के पास नहीं, और वो अब दुख और मुसीबत में है, परेशान है, और हमारा खुदा रहीम है, वो रहम करने वाला है और उन पर रहम करता है और उनके लिए वो खुद कलाम करता है। कलाम मुकद्दस में यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, देख मैं उसे सेहत व तंदुरुस्ती बख्शूंगा। आज का हमारा मज़मून है, खुदा सेहत और तंदुरुस्ती बख्शेगा। खुदा खुद फरमाता है, खुदा ने खुद कलाम किया है। खुदा जो कलाम को पूरा करने वाला जिंदा खुदा है, उसने कलाम किया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जो कलाम को पूरा करता है, अपने वादों में सच्चा है। वो यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी 6ठी आयत में बयान करता है, देख मैं उसे सेहत व तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा और अमन सलामती की कसरत उन पर ज़ाहिर करूंगा। वो खुदा जो पूरा करता है। देखिए यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी 2री आयत, खुदावन जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है। खुदावन जो पूरा करता है, अपने कलाम को पूरा करता है, अपनी बातों की तकमील करता है और जो अपने वादों में सच्चा है। और बाइबल बयान करती है कि खुदा जो पूरा करता है, जो बनाता है और जो कायम करता है और जिसका नाम यहोवा है, वो फरमाता है। ये फरमान किसी आम शख्सियत का नहीं, बल्कि ये उस खालिक का है जो पूरा करता है अपने वादे को, अपने कलाम को, अपने उन लोगों की जिंदगी में अपने कलाम को पूरा करता है और जो बनाता है, जो खालिक है। अब जब कोई शख्स कुछ कहता है तो हम ये देखते हैं कि वो कौन है जो कहता है। अगर एक अहमक शख्स कोई बात कहता है तो लोग उस पर नोटिस नहीं लेते और गौर नहीं करते, इसलिए कि किसी अहमक ने कहा है। लेकिन जब कोई आकिल कहता है तो लोग गौर करते हैं। और यहाँ खुदा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं जो पूरा करता, जो बनाता, जो कायम करता हूं और जिसका नाम यहोवा है, वो फरमाता है। खुदा जो पूरा करता है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक खुदा अपने वादों को पूरा करता है, अपने कलाम को पूरा करता है। अब ये खुदा का वादा है, अब ये खुदा का कलाम है। और खुदा ने यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी 6ठी आयत में ये फरमाया, देख मैं उसे सेहत व तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा। अब ये खुदा ने फरमाया है, खुदा फरमाता है कि देख मैं उसे सेहत व तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं उनको शिफा दूंगा और अमन व सलामती की कसरत
उन पर जाहिर करूंगा। ये उस खुदा ने कहा है जो बनाता है, यानी जो खालिक है, जिसने इंसान को खल किया, जो कायनात का खालिक है और जिसको जर्रे जर्रे पर कंट्रोल हासिल है और जो हाकिम आला है और जिसे हाकमियत हासिल है और जो सब कुछ करने पर कादिर है, जो बनाता है, जो जिंदगी को बनाता है, जो कायनात को बनाता है, जो आपको बनाता है और आपके उन बिगड़े हुए कामों को वो बनाता है। और कलाम में लिखा है कि मैं जो बनाता हूं और कायम करता हूं, खुदा ही बनाता है और खुदा ही कायम करता है। और जब खुदा कायम करता है, कौन गिरा सकता है? जब खुदा उठा खड़ा करता है, कौन उसे मिसमार कर सकता है? जब खुदा बनाता है, कौन उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है? इसलिए कि खुदा हाकिमुल हिकमत, खुदा दानाई का सरचश्मा, खुदा जो लामहदूद कुदरत का मालिक है, अब वो खुदा फरमाता है, देख मैं सेहत व तंदुरुस्ती बख्शूंगा। अब जब खुदा फरमाता है कि देख मैं सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, अब कौन है उस सेहत को रोके? अब कौन है जो तंदुरुस्ती में रुकावट पैदा करे? अब किसकी मजाल है, किसकी जुर्रत है? इसलिए कि वो खुदा फरमाता है जो बनाता है, जिससे इंसान को बनाया, जिससे कायनात को बनाया, जिससे कहकशां को बनाया, जिससे नबातात, पहाड़ और इन सब चीजों को बनाया। अब वो खुदा फरमाता है और जो कायम करता है, जो उनको रिटेन करता है, जो उनको इस्तवार करता है और जो उनको मेंटेन करता है, वो खुदा कहता है कि मैं सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा। अब वो खुदा जब सेहत देता है, तंदुरुस्ती बख्शता है, कौन है जो उसे कायम न रहने दे? इसलिए कि खुदा फरमाता है, खुदा सेहत और तंदुरुस्ती बख्शेगा। जब खुदा खुद फरमाता है कि देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, और सिर्फ इसी तक ही महदूद नहीं, बल्कि खुदा यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी 6ठी आयत का दूसरा हिस्सा, मैं उनको शिफा दूंगा और अमन सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। मैं सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं शिफा दूंगा और अमन सलामती की कसरत उन पर जाहिर करूंगा। खुदा जो पूरा करता है, खुदा जो बनाता है, खुदा जो कायम करता है और जिसका नाम यहोवा है, वो ये फरमाता है कि मैं तंदुरुस्ती और सेहत बख्शूंगा, मैं शिफा दूंगा और मैं अमन सलामती की कसरत बख्शूंगा। अब कौन है जो सेहत को रोक सके कि ना बने? कौन है जो तंदुरुस्ती को रोके कि कोई इंसान तंदुरुस्त ना हो? कौन है जो उस रहाई को रोक सके? हमारा खुदा कुदरत वाला, असमत वाला और हाकिमुल हिकमत, और कोई नहीं जो उसका सानी हो, कोई नहीं जो उसका मद्दे मुकाबिल हो। और जब वो फरमाता है तो वो पूरा करता है। वो कहता है कि देख मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा। और खुदा ये सब काम अपने रहम की कसरत से करता है। देखिए मेरे साथ यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, तो मैं याकूब की नस्ल को और अपने खादम दाऊद की नस्ल को रद्द कर दूंगा, ताकि मैं अब्राहम और इसहाक और याकूब की नस्ल पर हुकूमत करने के लिए उनके फरजंदों में से किसी को ना लूं, बल्कि मैं तो उनको असीरी से वापस लाऊंगा और उन पर रहम करूंगा। उनकी बदअमालियों के सवाब से, बरगश्तगी के सबब से, उदूलिय हुक्म के सबब से और बगावत के सबब से और अहकामात इलाहिया की तकमील न करने के सबब से खुदा उन्हें छोड़ देता है। और जब खुदा छोड़ देता है उनकी सेहत गिरती है। जब खुदा उन्हें छोड़ देता है तो फिर वो तंदुरुस्त नहीं रहते। जब खुदा उन्हें छोड़ देता है तो फिर बीमारियां
ان پر حملہ آور ہوتی ہے اور جب خدا چھوڑ دیتا ہے تو پھر امن اور سلامتی ان کی زندگی میں باقی نہیں رہتی، اور وہ دکھ اور مصیبت، بیماری، ابلیسی قوت کا شکار اور بڑے ہی مسائل ان کی زندگی کو آ کر گھیر لیتے ہیں، اور وہ زندگی میں دکھ اور مصیبت اٹھاتے ہیں۔ لیکن خدا اپنے رحم کی کثرت سے انہیں معاف کرتا ہے اور ان کی بد اعمالیوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، کتنا رحیم ہے اور کتنا پیار کرنے والا ہے کہ وہ ان کی بد اعمالیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور انہیں معاف کرتا ہے تاکہ انہیں صحت اور تندرستی بخشیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ 33واں باب اور اس کی 8ویں آیت، اور میں ان کو ان کی ساری بدکرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا۔ میں ان کی ساری بدکرداری سے، ان کی ساری بدکرداری جس سے وہ میرے گناہگار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے، معاف کروں گا۔ کتنا عظیم ہے خدا، اس کے خلاف جو بغاوت کی ہے خدا کہتا ہے میں اسے معاف کروں گا، اس بغاوت کو میں معاف کروں گا، بد اعمالی کو معاف کروں گا، اور جس سے میرے گناہگار ہوئے ہیں ان گناہوں کو میں معاف کروں گا۔ اور اس کے بعد خدا صحت اور تندرستی بخشتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ گناہ کے سبب سے صحت نہیں، خدا جانتا ہے بد اعمالی کے سبب سے ان کے بدنوں میں توانائی نہیں، خدا جانتا ہے سرکشی کے سبب سے یہ امن و آشتی سے محروم ہے اور ان کی زندگی میں دکھ ہے اور مصیبت ہے اور یہ سسکتے ہیں اور یہ روتے ہیں، اور کوئی نہیں جو ان کا پرسان حال ہو، کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے، کوئی نہیں جو رہائی دے، کوئی نہیں جو انہیں آزاد کرے۔ لیکن خدا جو خالق ہے پھر اسے رحم آتا ہے، پھر اسے ترس آتا ہے اور وہ بنی نوع انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اپنے رحم کی کثرت سے، اپنے فضل سے، اپنے اس بڑے عظیم منصوبے سے جو اس نے بنی نوع انسان کے لیے رکھا کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ میری اور آپ کی خاطر وہ قربان ہو، اور اس کی قربانی سے اور اس کے بلیدان ہونے سے، اس کی تسلیب سے ہم گناہ کے شکنجے سے آزاد ہو جائیں۔ اور جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر صحت اور تندرستی بھی زندگی میں آتی ہے۔ ایک خاتون انتہائی بیمار ہو گئی اور بے حد کمزور ہو گئی، اور بہت سے ڈاکٹر سے علاج کروایا لیکن وہ تندرست نہیں ہو رہی تھی، بلکہ جتنا علاج ہوتا اتنی اس کی صحت گرتی جاتی، اور جس قدر زیادہ میڈیسن لی جاتی اسی قدر بیماری کا زور بڑھتا ہی جاتا، اور وہ اس قدر ناتواں اور کمزور ہو گئی کہ چارپائی سے بھی ہل نہیں سکتی تھی۔ اور پھر ایک دن اسے سوچا اب دوائیوں سے شفا نہیں، اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس گئی اور مجھے شفا نہیں ملی۔ پھر اس سے اپنی زندگی پر غور کیا، اینالائز کیا، اور پھر اسے یاد آیا کہ اس کی زندگی میں گناہ ہے، اور ایک آدھ نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ گناہ کے سبب سے بیماری اور کمزوری جسم میں بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اس نے اپنے عزیزوں سے کہا کہ مجھے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں لے کر جائیں، اور میں چاہتی ہوں کہ بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف میرے لیے دعا کریں۔ اس کی دیورانیاں جٹھانیاں وہ اس کو لے کر آئی، اور جب لے کر آئی تو اس سے کہا کہ میں نے ان سے علیحدگی میں بات کرنی ہے، اور جب وہ دور ہوئی تو اس سے بتایا کہ میں جانتی ہوں کہ میں بیمار کیوں ہوں اور میرا مرض کیوں نہیں جاتا، اور اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں میرے گناہ کے سبب سے، میری
कोताहियों के सबब से, मेरी बदअमालियों के सबब से, मेरी सरकशी के सबब से, मेरी नाराजगी के सबब से ये मर्ज नहीं बल्कि अमराज ने मुझे जकड़ लिया है और इस शिकंजे से मैं आजाद नहीं हो सकती। और मैं सोचती हूं कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, अब खुदा मुझे मुआफ नहीं कर सकता, इसलिए कि मैंने एक आध नहीं बल्कि बहुत गुनाह किए हैं। और फिर वो ज़ारो कतार रोई, उससे कहा इतने गुनाह कैसे मुआफ हो सकते हैं और कैसे खुदा मुझे मुआफ करेगा। और जब वो खूब रोई और मैंने उसे बताया कि हमारा खुदा, मैंने कलाम मुकद्दस से हवाला जात दिए और मैंने उसे बताया कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हमारा खुदा हमें सारी नाराजगी से मुआफ करने, पाक करने में सच्चा और आदिल है। वो मुआफ करता है, सारी नाराजगी से हमें वो पाक कर देता है और उसका लहू, उसके बेटे यीशु का लहू हमें पाक करता है, निजासत जाती रहती है और इसमें उसका रहम है। वो अपने रहम से हमारी जिंदगी में काम करता है। अगर गुनाह ज्यादा है तो उसका रहम उन गुनाहों से भी ज्यादा है। अगर कसरत से गुनाह है तो रहम की भी कसरत है और अपने फजल से वो हमें मुआफ करता है। और उसने अपने गुनाह का इकरार किया कि क्या क्या उससे गुनाह किए हैं, और जब उसने उन गुनाहों का इकरार किया और मैंने उसके लिए दुआ की, और जब दुआ की और वापस गई तो सेहतमंद थी। और मैंने उसे ये कलाम का हवाला बताया कि खुदा तुझे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शेगा, और खुदा कहता है मैं तुझे शिफा दूंगा और अमन और सलामती की कसरत बख्शूंगा। और वो इस कलाम को लेकर गई। अब उससे ईमान रखा कि ये किसी आम इंसान की बात नहीं, किसी डॉक्टर की बात नहीं, किसी फिजिशियन और सर्जन की बात नहीं, बल्कि उस खुदा की बात है जो बनाता है, जो कायम करता है और जो सब कुछ करने पर कादिर है और जिसका नाम यहोवा है। वो ये फरमाता है, अब ये फरमान खुदा का है और खुदा शाफी है और तबीब आसम है। अब इस कलाम के साथ वो गई, इस ईमान के साथ गई कि ये फरमाया जिस खुदा ने है वही सब कुछ करने वाला है, और उसने अपने रहम की कसरत से मेरे गुनाह को मुआफ कर दिया है, मेरी तकसीरों को मुआफ कर दिया है, मेरी नालायकियों और नाराजगी को मुआफ कर दिया है। खुदा के कलाम मुकद्दस में देखें, यिर्मयाह 33वां बाब और उसकी 8वीं आयत, और मैं उनको उनकी सारी बदकिरदारी से, उनको उनकी सारी बदकिरदारी से जो उन्होंने मेरे खिलाफ की है पाक करूंगा, और मैं उनकी सारी बदकिरदारी जिससे वो मेरे गुनाहगार हुए और जिससे उन्होंने मेरे खिलाफ बगावत की है मुआफ करूंगा। कितना अजीम वादा है और कितना उम्मीद अफसा खुदा का कलाम है कि मैं उन्हें मुआफ करूंगा, उन बदअमालियों को जिससे वो मेरे गुनाहगार हुए हैं मैं उनसे उनको मुआफ करूंगा। खुदा कितना अजीम है कि वो अपने लोगों को, उन बदअमालियों को जिससे नापाक हुए हैं, खुदा कहता है मैं इनको मुआफ करूंगा ताकि ये सेहत और तंदुरुस्ती पाए। आपकी सेहत में रुकावट गुनाह है, आपकी तंदुरुस्ती में रुकावट गुनाह है, आपकी सलामती में रुकावट गुनाह है, आपके अमन और आश्ती में रुकावट गुनाह है, आपकी जिंदगी में खुशियों के खिलाफ गुनाह है। लेकिन खुदा कितना अजीम है, वो अपने लोगों के गुनाह को मुआफ करता है और वो कहता है मैं उनके गुनाह मुआफ करूंगा, मैं उन्हें सलामती बख्शूंगा। और जब आप खुदा के कलाम को सुनते और उस पर ईमान रखते हैं कि खुदा मेरे लिए ये कलाम कर रहा है कि मैं तुझे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, खुदा ने मुझसे कलाम किया है,
खुदा ने मुझसे कलाम किया है। जब आप ये सोचते हैं कि मैं तुझे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा और आप कामिल ईमान के साथ खुदा के इस अजीम वादे को और इस लासानी कलाम को कबूल करते हैं। अजीजों, मुझे स्किन कैंसर था, मेरे जिस्म के 5 हिस्सों में कैंसर था और मैंने खुदा के इस कलाम पर भरोसा किया कि देख मैं तुझे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा। ऐसा वादा किसी ऑन्कोलॉजिस्ट ने नहीं किया, माहिर कैंसर ने नहीं किया कि मैं तुझे तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं तुझे सेहत बख्शूंगा। लेकिन मेरे खुदा का यह अजीम वादा है, जो काम ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं कर सकता वो काम खुदा कर सकता है, क्योंकि वो बनाता है, वो कायम करता है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कोई डॉक्टर गुनाह मुआफ नहीं कर सकता। और बीमारियां जो गुनाह के सबब से हैं, इनकी जड़ों को सिर्फ उसी वक्त काटा जा सकता है जब गुनाह से मुआफी हो और जब आप खुदा के हुजूर आते हैं और आप कहते हैं कि खुदा मेरे गुनाह को मुआफ कर, मेरी नाराजगियों को मुआफ कर, आई खुदा मुझे इस दुख से छुड़ा। खुदा अजीम वादा करता है और वो आपको मुआफ करता, आपकी जिंदगी में अमन और आश्ती लाता है। और खुदा ये चाहता है कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो तो वादा करता है कि देख मैं तुझे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा। अब आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं, सेहतमंद होना चाहते हैं, अमन आश्ती चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, और वो आपसे सवाल करता है। वो तो उसका मंसूबा नौहे इंसान के लिए सेहत और तंदुरुस्ती का है, लेकिन आप एक्सेप्ट करते हैं जब आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं। वो तो करना चाहता है, लेकिन जब आप होना चाहते हैं फिर आपकी जिंदगी में काम होता है। आपकी जिंदगी में उस वक्त काम होता है जब आप जिंदा खुदा के हुजूर आते हैं और वो आपसे पूछता है क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहती है? और आप उससे कहते हैं हाँ खुदा मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं। मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये शख्स जो एक तवील अरसे से वहां बैठा अपनी शिफा का मुंतज़िर था, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये शख्स एक तवील अरसे से बीमारी में मुब्तला था। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था, एक तवील अरसे से मर्ज में मुब्तला है और ये सोचता है कि मैं शिफा के लिए उसके हौज के पास बैठा हूं, लेकिन शिफा न पानी से है न हौज से है, बल्कि शिफा जिससे फरमाया है कलाम से है, कलाम में खुदा से है और उसके कलाम पर बिलीव करने से है। और बाइबल बयान करती है अब मुजस्सम कलाम उसके पास आ गया, अब कलाम उसके पास आ गया। और बाइबल बयान करती है यूहन्ना की इंजील में कि कलाम मुजस्सम हुआ, यानी मुजस्सम कलाम अब इस शख्स के पास जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला है, 38 बरस से जान करने की हालत में है, 38 बरस से दुख और तकलीफ में मुब्तला है और ये चाहता तो है कि मैं शिफा पाऊं, लेकिन इसकी नजर ना उस कलाम पर है और ना कलाम खुदा पर है। इसकी नजर हौज पर है और हौज से शिफा नहीं जब तक शाफी शिफा ना दे। आज बहुत से लोग हैं जिनकी नजर शिफा के लिए शख्सियात पर है, मकामात पर है, मेडिकेशंस पर है,
हॉस्पिटलाइजेशन पर है, फिजिशियंस पर है, और वो कलाम न सुनते न कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। और बाइबल बयान करती है ज़बूर 107 में कि वो अपने कलाम को नासिल फरमाकर उनको शिफा देता है। खुदा जो बनाता, जो कायम रखता है, सिर्फ वही शिफा का मंबा है और वही शिफा बख्शता है। और खुदा ने उससे पूछा, खुदा के बेटे यीशु ने पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, आइए मेरे साथ देखिए यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जान करके बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, अब बड़े अरसे से पड़ा है और बड़ी मुद्दत से बीमारी में है, और ये उसके रहम की कसरत है कि वो खुद उसके पास आया। ये उसका रहम है कि वो उसके पास आकर उससे चाहता है कि वो शिफा पाए, और उससे पूछता है। क्या पूछा है? आइए देखिए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 6ठी आयत। उसको यीशु ने पढ़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? खुदा ने सवाल किया, मसीह ने सवाल किया, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? अब ये जवाब देने के बजाय, हां कहने की बजाय, अब इसका जवाब सुनिए। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौस में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। अब इसका जवाब देखें, इससे ये नहीं कहा, हां खुदा मैं शिफा पाना चाहता हूं, लेकिन उसके रहम की कसरत देखे, उससे देखा कि दुख में है, बड़ी मुसीबत में है। अब खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया, उससे पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसका जवाब नहीं है कि हां, बल्कि उसका जवाब है कि मैं हौस के किनारे बैठा हूं और मुझसे पहले कोई पहुंच जाता है। अब भी उसकी निगाह उस हौस पर है, उस पानी पर है, उस पानी के हलाए जाने का तसव्वुर और ख्याल उसके जहन में है, लेकिन वो नहीं जानता कि कौन तंदुरुस्त कर सकता है। आज भी ऐसा ही है, आप शाफी के करीब होते हुए भी उससे शिफा पाने की बजाय उससे जो वो कहता है उसकी बजाय आप कुछ और ही कहते हैं। लेकिन ये उसका रहम और रहम की कसरत है कि वो शिफा देता है, और वो कहता है, मैं तुझे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा, मैं तुझे अमन और सलामती बख्शूंगा। तू 38 बरस से बीमारी में मुब्तला है, मैं तुझे शिफा दूंगा। कोई पानी तुझे शिफा नहीं दे सकता, कोई और मखलूक तुझे शिफा नहीं दे सकती। अगर शिफा दे सकता है तो सिर्फ मैं हूं जो शिफा दे सकता हूं, यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह। और बाइबल बयान करती है, मसीह ने उसकी शिफा न सिर्फ उसे कहा ही, बल्कि वो पूरा करता है, उससे अपने इस वादे को पूरा किया। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। मसीह ने उससे सवाल किया था, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? अब मसीह ने उसे तंदुरुस्त कर दिया, इसलिए कि खुदा ने खुद ये फरमाया कि मैं उसे सेहत और तंदुरुस्ती बख्शूंगा। खुदावंद यीशु तंदुरुस्ती बख्श सकता है, वो आपको सेहत बख्श सकता है, वो आपको कुव्वत बख्श सकता है। आप उस पर अपनी नजर कर ले, अपनी शिफा उससे ले ले, अपनी रहाई उससे ले ले, और वो आपको शिफा दे सकता है, और वो आपको रहाई बख्श सकता है, और उसमें कुदरत है, और वो फरमाता है और वो पूरा करता है। बस लोग कहते बहुत कुछ हैं,
لیکن اسے پورا نہیں کر پاتے. دعوے بہت کرتے ہیں لیکن ان کے سارے دعوے بطالت پر مبنی ہیں. لیکن ہمارا خدا جو دعویٰ کرتا ہے اسے سچ ثابت کرتا ہے، اس دعوے کی تکمیل کرتا ہے. وہ جو کلام کرتا ہے اس کلام کو پورا کرتا ہے، اور مسیح نے اس کلام کو پورا کیا. کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور بائبل بیان کرتی ہے مسیح نے اسے تندرست کر دیا، اسے صحت بخشی، اس کی زندگی میں امن آ گیا، اس کی زندگی میں چین آ گیا، اس کی زندگی میں امن و آشتی آ گئی، اور اس کے خاندان اور زندگی میں سلامتی آ گئی. اور یہ کام صرف اور صرف یسوع مسیح کر سکتا ہے. وہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لاتا ہے، وہ آپ کو برکت اور کثرت کی برکت بخشتا ہے، اور اس میں اس کا رحم ہے. اس شخص کی کوئی لیاقت نہیں اور اس کا کوئی ہم کنٹریبیوشن نہیں دیکھتے، لیکن خدا نے اپنے رحم کی کثرت سے اسے تندرستی بخشی ہے. وہ رحیم ہے اور وہ مہربان ہے، وہ معاف کرتا ہے، اور ان کو جو دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہے خدا انہیں شفا دیتا ہے. اور آج خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے. آپ کا مرض خواہ کتنے عرصے سے ہے، شاید آپ کا مرض اس شخص کی طرح ایک طویل عرصے سے ہے، آپ نا امید ہو چکی ہے یا ہو چکے ہیں، لیکن آج خدا آپ کو اپنے کلام سے زندہ امید بخشتا ہے. اور خدا فرماتا ہے کہ دیکھ میں اسے صحت اور تندرستی بخشوں گا. اور وہ پورا کر کے دکھاتا ہے اپنے کلام کو. آج خدا آپ کے بدن میں کام کرنا چاہتا ہے. وہ اپنے رحم کی کثرت سے آپ کی زندگی میں معجزات کرنے کو ہے اور اپنے کلام کو پورا کرنے کو ہے. یہ شخص جو 38 برس سے شفا نہ پا سکا، مسیح کی قدرت سے اس نے شفا پائی، اور آج وہی یسوع آپ کو شفا دینے کے لیے یہاں موجود ہے. میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل 7واں باب اور اس کی پہلی آیت. اب تندرست ہونے کے لیے کیا درکار ہے؟ لوکا کی انجیل 7واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرناؤم میں آیا، اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا. اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر. خدا کے کلام مقدس میں اب یہ چاہتا ہے کہ اس کا نوکر تندرست ہو. اس نے لوگوں کو بھیجا مسیح کے پاس، اور لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ اے مسیح تو اس صوبیدار کے نوکر کو تندرست کر، کیونکہ وہ نوکر جو صوبیدار کا ہے وہ مرنے کو ہے، اور صوبیدار چاہتا ہے کہ اس کا نوکر تندرست ہو. آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 4 آیت. وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ تندرست ہو، خدا آپ پر رحم کرے، تو آپ میں 2 چیزوں کا ہونا انتہائی اہم بھی ہے اور ضروری ہے. نمبر 1، آپ مسیح کے لوگوں سے محبت کریں، اور دوسری بات خدا کے گھر سے محبت رکھے. یہ صوبیدار جو کہ خدا کے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، 5ویں آیت لوکا کی انجیل 7واں باب اس کی 5ویں آیت، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا. اس شخص نے اپنے وسائل خدا کے گھر کے لیے خرچ کیے، اور یہ
خدا کے لوگوں، خدا کے بیٹے بیٹیوں اور خدا کی قوم سے محبت رکھتا ہے۔ اب اس کی زندگی میں دو خصوصیات ہم دیکھتے ہیں، خدا کی قوم سے محبت اور خدا کے گھر سے محبت۔ اور اس نے عبادت خانہ بنوایا، جو خدا نے اسے وسائل دیے، اسے ان وسائل کو یوٹیلائز کیا خداوند کے لیے اور خدا کے گھر کے لیے۔ اور یہ اظہار ہے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے، یہ اظہار ہے کہ وہ خدا سے پیار کرتا ہے، یہ اظہار ہے کہ وہ دل سے خدا کو چاہتا ہے، اور اس لیے اسے خدا کے گھر کو بنوایا اور وہ پیسہ اسے وہاں خرچ کیا، اور خدا کو بھی اس پر رحم آیا۔ جس کی محبت خدا کی طرف ہوتی ہے، خدا کو اس پر رحم آتا ہے۔ اب یہ خدا کے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور خدا کے گھر سے محبت رکھتا ہے، اور خدا بھی اس کے لیے عظیم کام کرتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے خدا نے رحم کیا اور اس کے نوکر کو شفا بخشی۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے لوکا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ مسیح نے اس کے نوکر کو تندرست کر دیا، رحم کیا۔ جب آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا کے گھر سے محبت رکھتے ہیں، خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں، پھر آپ کے گھر کے افراد یا آپ سے وابستہ افراد اگر بیمار ہیں اور مختلف امراض میں مبتلا ہیں، خدا آپ پر رحم کرتا ہے اور اپنے رحم کی کثرت سے ان کو بھی شفا دیتا ہے۔ عزیزوں، کتنا عظیم ہے ہمارا خدا۔ وہ ان لوگوں پر کثرت سے رحم کرتا ہے، حالانکہ اس کے قوم سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس سے محبت ہے۔ اور اسی طرح جب آپ گناہ میں ہیں لیکن آپ اس سے چھٹکارے کے لیے خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ وسائل جو دوائیوں پر خرچ کرنے ہیں اور وہ ریسورسز جو آپ نے تندرست ہونے کے لیے آپ نے ادویات پر خرچ کرنے ہیں، وہ آپ خدا کے کلیسیا میں، خدا کے گھر میں دیتے ہیں۔ خدا آپ کے بدن سے امراض کو دور کر دیتا ہے، خدا آپ کو تندرست کر دیتا ہے، آپ کے اراکین خاندان سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، آپ سے وابستہ تمام لوگوں کے بدنوں کو تندرست کر دیتا ہے اور برکت بھی بخشتا ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ برکت پائیں، خدا چاہتا ہے آپ تندرستی پائیں، خدا چاہتا ہے آپ کا خاندان تندرستی پائے، خدا چاہتا ہے آپ سے وابستہ تمام لوگ شفا اور سلامتی کی کثرت کو حاصل کریں، اور یہ اس وقت ہے جب آپ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا سے محبت نہیں کرتے، خدا کے گھر سے محبت نہیں کرتے۔ وہ اپنا روپیہ پیسہ، لاکھوں روپیہ ٹیسٹ پر اور ادویات پر، ہاسپٹلائزیشن پر تو خرچ کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے، خدا کے گھر کے لیے وہ بڑی بخیل ہوتے ہیں، اور ان کا دل نہیں چاہتا کہ خداوند کے حضور نظر کرے۔ عزیزو، خدا ان باتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ شخص کتنا اس سے محبت رکھتا ہے، کس قدر اس کے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، کس قدر خدا کے گھر سے محبت رکھتا ہے۔ آپ جب خدا کے گھر سے محبت رکھتے ہیں، خدا کے حضور آتے ہیں، خدا آپ پر رحم کی کثرت کرتا ہے،
اور آپ کو بیماریوں سے شفا بخشتا ہے، تندرستی عنایت کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں سے محبت یہ صوبیدار رکھتا تھا۔ خدا کے گھر کو اس نے بنوایا، اس نے اپنے گھر کی پرواہ نہیں کی، خدا کے گھر کو بنوایا۔ خدا نے اس کے گھر میں نوکر کو شفا دی۔ اب سوچیں، اگر خدا اس کے نوکر کے لیے یہ کر سکتا ہے تو کیا خدا اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے نہیں کر سکتا؟ اس کی اولاد کے لیے نہیں کر سکتا؟ اس کے خاندان کے لیے نہیں کر سکتا؟ یقیناً خدا کر سکتا ہے اور خدا کرتا ہے۔ آج آپ اپنی زندگی پر غور کریں، آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ کیا آپ ان ریسورسز کو جو خدا نے دیے ہیں نشے پر، عیش و نشاط پر، برے کاموں پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن خدا کے حضور نہ آتے ہیں اور نہ خدا کے حضور نظر کرتے ہیں؟ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیں، یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ عزیزو، خدا آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بات مشکل نہیں۔ اگر ایک طویل عرصے سے بھی آپ چارپائی پر پڑی ہیں یا چارپائی پر پڑے ہیں، خدا آپ کے لیے کام کر سکتا ہے۔ کب؟ جب آپ ایمان کے ساتھ اس کے حضور آتے ہیں۔ میں ایک گاؤں میں گیا تو وہ خاتون مفلوج تھی، چل نہیں سکتی تھی، لیکن اسپیکر کی آواز، لاؤڈ اسپیکر کی آواز وہاں تک تھی، بالکل وہ گاؤں کے آخری سرے پر تھی، اور شفائیہ اور بشارتی عبادت تھی۔ اس نے ایمان رکھا کہ خدا اپنے رحم کی کثرت سے مجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس کے سارے ریلیٹو عبادت میں آئے اور وہ گھر میں اکیلی تھی، اور جب اس سے آواز کو سنا تو اس نے ایمان رکھا کہ خدا اپنے رحم کی کثرت سے مجھے یہیں شفا دے گا، اور میں آج تندرست ہونا چاہتی ہوں۔ اور اس نے اپنے ذہن میں ان سارے باتوں کو لا کر جو گناہ اور ناراضی تھی، خدا کے حضور اس سے معافی مانگی، اور مضمون تھا خدا کے حضور سے تازگی کے دن۔ اور اس نے کلام کو سنا، اور جب کلام سنا تو اس نے کہا آج میرے لیے بھی تازگی کا دن ہے، آج میں بھی شفا پاؤں گی۔ اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اور جیسے ہی بیماروں کے لیے شفا کے لیے دعا کی تو وہ اپنے گھر میں ہی آواز سن رہی تھی، اور اس نے ایمان رکھا کہ میرا خدا لامحدود قدرت کا مالک ہے، اور جب وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے صحت اور تندرستی بخشوں گا تو وہ مجھے صحت بخش سکتا ہے۔ اور آج میرے لیے تازگی کا دن ہے، آج میں تندرست ہونا چاہتی ہوں، آج میں نے تندرست ہونا ہے، کیونکہ خدا یہ وعدہ میرے لیے صدیوں پہلے کر چکا ہے، اور اب میں نے اس وعدے کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اور جیسے مسیح نے اپنی بشری خدمت کے دوران اس سے سوال کیا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، اور آج اس نے کہا، اس خاتون نے کہا آج میں تندرست ہونا چاہتی ہوں، آج میں بندنوں سے رہائی چاہتی ہوں، آج میں چاہتی ہوں کہ یہ فالج کے تمام بندھن میری زندگی سے ٹوٹ جائیں اور میں بھی نارمل زندگی بسر کروں، اور میرا خدا مجھ پر رحم کرے گا، اپنے رحم کی کثرت سے میرے گناہ کو اس سے معاف کر دیا ہے۔ اور جب میں نے بیماروں کے لیے دعا کی تو دعا کے دوران ہی اس نے کروٹ لی، اور پھر دعا کے دوران ہی وہ اٹھ کر بیٹھی، اور جب آمین کیا تو
तो वो चलने फिरने लगी। और उसने इबादत के आखिर में आकर उसे गवाही दी। उसने कहा कोई भी घर पर नहीं था। जैसे वो मफलूज जो 38 बरस से पड़ा था और वो किसी की मदद चाहता था, किसी इंसान की मदद कि वो उसे हौस में उतारे, अब वो खातून भी बिल्कुल उसी की तरह, अब कोई शख्स न था, न खानदान का कोई रुकन था, न कोई शख्स था। उन्होंने सोचा कि बस ये घर पर रहे, हम इबादत में जाते हैं, लेकिन इसमें भी कि वो खुदा से मोहब्बत करते हैं, उसके कलाम को सुनने के लिए गए। और इसने जो कि कोई इंसानी मददगार न था, लेकिन यीशु मसीह जो हमारा हामी, हमारा मददगार, और जो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, और जिसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब कोई इंसान ना भी हो तो भी जब हम ईमान के साथ उसे कबूल करते हैं, उसके कलाम को कबूल करते हैं और उसके वादों को अपनी जिंदगी में रखते हैं और सोचते हैं कि मेरा खुदा बनाने वाला, कायम करने वाला है, वो पूरा करने वाला है, वो इस वादे को पूरा करेगा, इस कलाम को पूरा करेगा, और मेरी जिंदगी में आज ये कलाम पूरा होगा। आज सुनते तो बहुत है और बहुत लोग तवज्जो भी देते हैं, लेकिन उस वादे की तकमील अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। और उस वक्त वादा पूरा होता है जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम अपने गुनाह को खुदा के हुजूर आकर अपने आप को गुनाहगार समझते हुए उसके हुजूर माफी के लिए खास्तगार होते हैं, तो वो अपने रहम की कसरत से मुआफ करता है और बंधन टूट जाते हैं, बीमारियां जाती रहती है, फालिज और अबलीसी असर जिंदगी से जाता रहता है। इसलिए कि आप अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं कि मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं, मैं शिफा पाना चाहता हूं, मैं रहाई पाना चाहता हूं, मैं गुर्बत से रहाई पाना चाहता हूं, बेरोजगारी से रहाई पाना चाहता हूं, मसाइल से मैं रहाई पाना चाहता हूं। अच्छा, आप सोचते हैं हाँ आज मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं, खुदा उसी दिन आपको तंदुरुस्त कर देता। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, कहते हैं जी कभी तो हम ठीक होंगे, कभी नहीं, बल्कि आज ही निजात का दिन है, आज ही तंदुरुस्ती का दिन है। अब वो शख्स 38 बरस से बीमार था, लेकिन वही दिन उसकी तंदुरुस्ती का दिन हो गया। और आज का दिन आपकी तंदुरुस्ती का दिन है, आज का दिन आपकी शिफा का दिन है, आज का दिन आपकी बेरोजगारी के खात्मे का दिन है, आज का दिन आपके घराने में काम होने का दिन है। जब खुदा सूबेदार के नौकर की जिंदगी में काम कर सकता है, आपके बेटे की जिंदगी में क्यों नहीं कर सकता? आपकी बेटी की जिंदगी में क्यों नहीं कर सकता? आपके खानदान में क्यों नहीं कर सकता? आपकी कलीसिया में क्यों नहीं कर सकता? आपके मुआशरे में क्यों नहीं कर सकता? आपके मुल्क में क्यों नहीं कर सकता? और इस दुनिया में क्यों नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है, इसलिए कि हमारा खुदा पूरा करने वाला है। एमाल चौथा बाब और उसकी 10वीं आयत। कलाम खुदा में ये लिखा है, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। वो शख्स खुदा के खादमों के वसीला से शिफा पा गया। अब वो ये बता रहे हैं कि यीशु के नाम से ये शिफा पा गया है, तंदुरुस्त खड़ा है। जब आप मसीह के शागिर्द और शागिर्दा बनती हैं और उसके कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, तो बेशुमार लोग आपके वसीला से तंदुरुस्त हो गए।
लेकिन अगर आप इर्तिकाब गुनाह करेंगे तो फिर दोबारा आप बीमारी में मुब्तला होंगे, इब्लीसी कुव्वतों में मुब्तला होंगे। खुदा आपके लिए क्या अजीम मंसूबा चार्ट रखता है। देखिए मेरे साथ यूहन्ना का खत, तीसरा यूहन्ना पहला बाब, यूहन्ना का तीसरा खत पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। जब आप खुदा के शागिर्द बनेंगे और तंदुरुस्ती में खुदा के जलाल को जाहिर करेंगे, फिर आप दूसरों की तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो होंगे। आप दुआ करेंगे कि दूसरे तंदुरुस्त हों। जब खुदा ने मुझे स्किन कैंसर से शिफा दी, मैंने दूसरों के लिए दुआ की और बहुत से कैंसर के मरीज शिफा याब हुए, बहुत से बदर गिरफ्तार आजाद हुए और बहुत से बदहाल और गुर्बत के शिकंजे से रहाई पाकर खुदावंद में मुस्तहकम हुए। जब आप मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और वो आपको तंदुरुस्ती बख्शता है, तो फिर आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं। देखिए यूहन्ना का तीसरा खत पहला बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। आप फिर उनकी रूहानी तंदुरुस्ती, जिस्मानी तंदुरुस्ती और सारे जिंदगी के पहलुओं में आप सोचेंगे कि वो तरक्की करे, इसलिए कि आप तंदुरुस्त हुए। आप उनकी रूहानी तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो होंगे। क्या खुदा इनको तूने जिस्मानी तंदुरुस्ती दी है तो रूहानी भी तंदुरुस्ती इनकी कायम रहे, और न सिर्फ इसी में बल्कि तालीम में भी तरक्की करे और मशत में तरक्की करे, खानदान में तरक्की करे और कारोबार में तरक्की करे, गर्से के हर एक शोबे में ये तरक्की करें। और ये कब है? जब तंदुरुस्त रहेंगे। और अगर कोई तंदुरुस्त नहीं तो वो किसी शोबे में तरक्की नहीं कर सकता। अगर मैं तंदुरुस्त ना रहता तो मैं किसी शोबे में तरक्की नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने जब मसीह से तंदुरुस्ती पाई, अब तक मैं 28 किताबें लिख चुका हूं। मैंने मसीह से तंदुरुस्ती पाई तो मैंने तकरीबन 200 से ज्यादा ऑडियो पैगाम की ऑडियो कैसेट्स हैं और सीडीज 150 से ज्यादा वीडियो सीडीज है, और उसके अलावा ब्रांचेस है, हेड ऑफिस है, और इन सब में मैंने खुदा के जोर गहरी दिलचस्पी के साथ खुदा के कामों को किया, क्योंकि तंदुरुस्त हूं। और सुबह से रात 12 तक कंटिन्यू इबादत प्रोग्राम्स हैं और खुदा ने सेहत बख्शी। इसलिए तंदुरुस्ती अहम भी है और जरूरी है। जब आप तंदुरुस्त होते हैं तभी आप तरक्की करते हैं, इल्मी तौर पर, अकली तौर पर और माशी तौर पर, खानदानी तौर पर, हर जाविये से आप तरक्की करते हैं। कब? जब तंदुरुस्त हैं। जब बीमार पड़ेंगे, अगर कोई तंदुरुस्ती नहीं तो वो खड़ा नहीं हो सकेगा, तंदुरुस्त नहीं तो वो कुछ लिख नहीं सकेगा, तंदुरुस्त नहीं तो कुछ बोल नहीं सकेगा। लेकिन खुदा हमें तंदुरुस्त करके या तंदुरुस्ती बख्श कर खुदा हमें तमाम शोबाए जिंदगी में तरक्की देता, और ये काम खुदा आपकी जिंदगी में भी करना चाहता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो जाएं। खुदा चाहता है, खुदा आपको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। आज खुदा आपसे भी चाहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहती है? रूहानी तौर पर तू तंदुरुस्त होना चाहता है? जिस्मानी तौर पर तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और अगर आपका जवाब है कि हाँ खुदा मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं, और जब आप तंदुरुस्त होंगे माली तौर पर तरक्की करेंगे, खुशहाली पाएंगे, और खानदानी, इल्मी, अकली, अदबी, रूहानी, जिस्मानी, मादी हर तरह से आप तरक्की पाएंगे। आसमानी, जमीनी, रूहानी हर मामले में आप तरक्की करेंगे। लेकिन कब? जब आप तंदुरुस्त हैं। आज मसीह आपसे भी पूछता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहती है?
अगर आपका जवाब है कि हाँ मसीह, मैं होना चाहता हूं, होना चाहती हूं तंदुरुस्त, अपने पांव पर खड़े हो जाए। शायद आप जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हो लेकिन रूहानी तौर पर तंदुरुस्त ना हो। आप उससे कहें कि हाँ, मैं रूहानी तौर पर तंदुरुस्त होना चाहता हूं। शायद आप तरक्की ना कर रहे हो किसी शोबे में या मुख्तलिफ शोबों में, आज तंदुरुस्ती पाए और उस तरक्की के लिए, क्या खुदा मैं तरक्की करना चाहता हूं, जल्दी से अपने पांव पर खड़े हो जाएं। खुदा आपको माशी तरक्की देना चाहता है। अगर आप चाहते हैं रुपए पैसे की तरक्की, माशी तरक्की, बरकत, तो आप खुदा के हुजूर आ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया। मैं इस कलाम को दिल से कबूल करता हूं। आए खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तू मेरे लिए अच्छे मंसूबे रखता है और तू चाहता है कि मैं सेहत और तंदुरुस्ती पाऊं। आए खुदावंद, तू रहीम है, तू मेरे गुनाहों को और तमाम गुनाह की दस्तावेज को अपनी लहू से मिटा दे और मुझे तंदुरुस्ती बख्श, रूहानी तौर पर तंदुरुस्ती बख्श, जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्ती बख्श, ताकि मैं तंदुरुस्त रहकर तेरे जलाल को जाहिर करूं, तेरे घर में तेरे कलाम को सुनने के लिए आऊं और गुनाह ना करूं, और लोगों के लिए जो तंदुरुस्त नहीं उनके लिए दुआ करूं ताकि वो भी तंदुरुस्त हो जाएं और हर तरह से तरक्की करें। तेरा शुक्र। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, अक़दस जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं कि तू अपने लोगों को तंदुरुस्ती बख्शता है। तो कहता है, देख मैं तुझे तंदुरुस्ती बख्शूंगा और तुझे शिफा दूंगा। अपने रहम की कसरत से तो ये सब काम अपने लोगों के लिए करता है। आज इस वक्त तेरे बेटे और बेटियां जो बड़े ईमान के साथ तेरे पास, तेरे हुजूर चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में खड़े हैं, आई खुदावंद इनमें से हर एक को कामिल तंदुरुस्ती बख्श और शिफा दे ताकि हर तरह से तरक्की कर सके और तेरे जलाल को जाहिर कर सके। और खुदावंद तेरी बरकत, तेरा अबर तेरे लोगों पर रहे। और मेरा ईमान है आज तूने कामिल तंदुरुस्ती बख्श कर अपने जलाल के लिए अपना आलाकार बनाएगा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। अब आप ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।